Hello, dear students. This is our last question of chapter 1, illustration number 15. Right? Let's see the question. Hope you can see. So, three partners are there: Shruti, Kasvi, and Mary. Total balance of the fixed capital on 1st April 16, opening balance you can say, was 2,50,000, but this is the total amount you have given, and it was in the proportion of 2:2:1. So this is the capital ratio you have given. Balance of their current account were as follow: Shruti 24,000, but credit balance, so it is written on which side? Current account credit side. Kasvi 18,000 debit balance, that means current account debit side. And Mary 12,000 credit balance, that means current account credit side. Very good. Now some adjustment you have given. First adjustment, 3/5 of profit to be distributed in the ratio of 3:2:1, right? So in as like in previous sum, half, here we have 3/5, so remaining part is 2/5. So first part 3/5 should be distributed in 3:2:1, that we will see in explanation. And the remaining part of that profit, of the divisible profit, should be distributed in their opening capital. And what is the ratio of opening capital? It is 2:2:1. I hope it is clear. Second adjustment, provide 10% interest on capital. Very simple. Third, 8% interest on opening balance of current account. So those who have debit balance should have debit balance of interest on current account, and those who have credit balance interest on current account. Then monthly salary 500 is payable to Kasvi. Very simple adjustment. 12% interest is chargeable to drawing, so this is interest on drawing. Shruti withdrawal 18,000 on 1/2/17. This is withdrawal you have given. Kasvi 12,000 and Mary 20,000. So let's decide that how many month should be calculated. On Shruti's withdrawal, on which date? 1st of Feb. So Feb and 31st March, 2 month. For Kasvi 30th 11, so November is over, so starting from December, January, February, March, for 4 months. And Mary on 1/10, so including that 10 October, that is October, November, December, 10, 11, 12, 1, 2 and 3, total 6 months, right? Now moving further, Mary has introduced capital rupees 24,000 on 1/1/17. So this is additional capital you can say, right? But try to understand, there is no such effect should be given of this 24,000, but where it affect, while you are calculating interest on capital, so of the total amount of Mary, this 24,000 should be kept aside, because on this 24,000 only 3 months it is introduced on 1/1/70. So 1, 2 and 3, only 3 month interest on capital should be calculated. On the rest amount, total 12 month interest on capital should be calculated. I hope it is clear, right? 5% amount of net profit is to be transferred to the development fund. Then after 10% commission on net profit is payable to Mary,
right? So this is what amount of transfer to development fund. In the previous question we have general reserve, here we have development fund, so there you have to transfer from the profit, but not more than 6,000. So the limit you have given. Then after 10% commission on net profit is payable to Mary, but from the profit underline this word, after deduction of such her commission. after यानी याद आया, into 10 डिवाइड बाय कितना होगा 110. वेरी गुड. Profit of the firm for the year ending 31st March 17 after credit of interest on drawing but before incorporation of other adjustment 1,71,040. Try to understand बेटा, हमको तो बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो जो प्रॉफिट आएगा उसमें हम ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह ऐड करेंगे. तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये प्रॉफिट में वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो ऐड है, उसको हम पहले क्या करेंगे निकालेंगे, तो एक्चुअल जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, वो मिलेगा. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन देख ले एक्सप्लेनेशन में. ठीक है, चलो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन. पहला एक्सप्लेनेशन, टोटल 1,71,040 हमारा टोटल प्रॉफिट है, बट इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड है, उसको लेस करेंगे. तो सभी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे. पहले का 360 आया, दूसरे का 480 एंड तीसरे का 1200. हर एक के जो डेट दिए है वहाँ से लेके 31 मार्च तक जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो करके आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये 360, 480 एंड 1200 मिल जाएगा. टोटल हो गया 2040 विच इज़ इंक्लूडेड इन आवर प्रॉफिट. उसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो प्रॉफिट अब कितना बचा 1,69,000. पता चला सबको ये 1,69,000 कहाँ से आया. दिस इज द नेट प्रॉफिट विच इज डिराइव फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, तो इसको अब लिखो P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड. दिख रहा है सबको P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट है कितना हमारा 1,69,000. इज इट क्लियर. चलो अब आगे बढ़े. बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं वो एक बार देख लो. पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट अंडर फिक्स मेथड, यानी हमको यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सब लोग आ जाओ. 1,416 को लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन. श्रुति का 1 लाख, कसवी का 1 लाख एंड मैरी का 50,000. कहाँ से आया, टोटल 2,50,000 दिया था, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो है 2:2:1, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमको अमाउंट मिल जाएगी. ठीक है, क्लियर है. उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 1,117 को एडिशनल कैपिटल लाया है 24,000. ठीक है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, ऐड करेंगे. ठीक है, तो 1,117 को एडिशनल कैपिटल आया, तो एडिशनल कैपिटल भी कहाँ पे जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा. तो क्रेडिट साइड देख लो, बाय कुछ नहीं बोला है तो कैश में ही लाए होंगे, बाय कैश अकाउंट. सिर्फ मैरी का ही एडिशनल कैपिटल है तो मैरी के कॉलम में 24,000. इज इट क्लियर. इसका कोई दूसरा इफेक्ट नहीं जाएगा. हाँ, अगर कैश अकाउंट बनाते तो वहाँ पे दूसरा इफेक्ट इसका जाता. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो हमारा है करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया है, तो वो सब लिख दो. देखो फिर से करंट अकाउंट का बैलेंस देखे तो श्रुति का 24,000 क्रेडिट बैलेंस है, कसवी का 18,000 डेबिट है, और मैरी का 12,000 क्रेडिट है. तो चलो करंट अकाउंट में चले जाओ, जिसका डेबिट है उसका डेबिट में लिखो, जिसका क्रेडिट है उसका क्रेडिट में लिखो. चलो देखो, तो सबसे पहले डेबिट साइड 1,416 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन है. एक्चुअली वहाँ पे गलती से कैरी डाउन लिख दिया है उन्होंने. ब्रॉड डाउन है कितना, कसवी का डेबिट बैलेंस था 18,000, बट बाकी दो पार्टनर 1,416 को बैलेंस ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड
उनका क्रेडिट था, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे श्रुति का 24,000, मैरी का 12,000। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब लिख लेते हैं हर एक का ड्राइंग्स। कैपिटल लिख दिया, करंट अकाउंट का बैलेंस लिख दिया, अब ड्राइंग का भी बैलेंस लिख दो। तो हर एक का अलग अलग डेट पे ड्राइंग था, ठीक है। तो 110 को ड्राइंग था, मैरी का 20,000, डेबिट साइड लिखेंगे, करंट अकाउंट में ही आएगा। करंट अकाउंट बना रहे हो तो सब कुछ करंट अकाउंट में आएगा, सिर्फ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो 110 को जो मैरी का है ड्राइंग वो है 20,000, फिर 3011 को कस्वी का 12,000 एंड 12 को श्रुति का 18,000 है ड्राइंग, जो हमने डेबिट साइड लिख दिया। इज इट क्लियर? चलो अब सबसे पहले एडजस्टमेंट की ओर जाए तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने पहले ही बताया जहाँ कैपिटल वैसे है वहीं पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट यहाँ पे कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में है और करंट अकाउंट बनाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा करंट अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड आप देख सकते हो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो पहले दोनों का तो बहुत सिंपल है क्योंकि उनका कोई एडिशनल कैपिटल था नहीं। 1 लाख 1 लाख दोनों का 10% आ गया, 10,000 10,000 दिख रहा है। बट जो मैरी है उसका 50,000 पे 10% 5,000 आएगा, वो तो पूरे साल का। बट ये 24,000 है, उसके डेट देखो 1170 यानी उस पर 3 मंथ का आएगा। तो 24,000 उस पर 10% और यानी 10% यानी होगा 2400, ठीक है। बट उस पर 3 मंथ का आएगा 600। तो 5,000 प्लस 600 5600। अगर कैलकुलेशन देखना है तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ मैरी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, सीधा 50,000 पे 5,000 हो गया और नीचे 24,000 पे 10% इंटू 3/12 600 हो गया, टोटल हो गया 5600। क्लियर है ये? चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट से लिखा 10,000 10,000 5600, एक इफेक्ट क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड। देख लो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड दिख रहा है, वेरी गुड। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, श्रुति 10,000, कस्वी 10,000, मैरी 5600, टोटल हो गया 25,600। इज इट क्लियर? अब वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वापिस से करंट अकाउंट में आ जाओ, ड्राइंग कहाँ पे लिखा है? करंट अकाउंट डेबिट साइड, उसी के नीचे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, 360 480 एंड 1200, ठीक है। तो एक इफेक्ट डेबिट, दूसरी इफेक्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड। देख लो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 360 480 1200, टोटल 2040। इज इट क्लियर? ठीक है। अब बात करेंगे जो करंट अकाउंट का जिसका जो बैलेंस है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। देख लो करंट अकाउंट पे आ जाओ, सबसे पहले मैं डेबिट साइड आ जाता हूँ। डेबिट साइड सिर्फ कस्वी का ओपनिंग बैलेंस है 18,000, उसका हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे सीधा। आप देखो डेबिट साइड ही, जिसका डेबिट बैलेंस है उसका इंटरेस्ट पहली इफेक्ट डेबिट साइड ही देंगे हम करंट अकाउंट में। क्रेडिट साइड है तो उसका पहला इंटरेस्ट पहली इफेक्ट क्रेडिट साइड ही देंगे। तो कस्वी का डेबिट साइड नीचे लिखा है 31 मार्च 17, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जो है 1440। ओपनिंग है यानी कोई मंथ वगैरह कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, सीधा जो परसेंटेज दिया है वो मल्टीप्लाई करो तो ये अमाउंट आ जाएगी 1440। इज इट क्लियर? एक इफेक्ट डेबिट, दूसरी इफेक्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट साइड। देख लो बाय इंटरेस्ट ऑन करंट कस्वी 1440। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब क्रेडिट साइड का बैलेंस देख लो। हाँ, श्रुति का 24,000 है और मैरी का 12,000 है। नीचे देखो उस पर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, वहीं पे पहली इफेक्ट देनी है क्रेडिट साइड। श्रुति का आया 1920,
अमेरिका आया 960। एक इफेक्ट करंट अकाउंट क्रेडिट। दूसरी इफेक्ट यस पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड। देख लो अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। श्रुति का 1920, अमेरिका 960, टोटल हो गया 2880। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। चलो अब जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है वो है हमको कसवी को सैलरी देनी है 6000 रुपीज। ठीक है, तो एक इफेक्ट करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, जो भी आप सैलरी बोनस कमीशन रेम्यूनरेशन जो भी दे रहे हो, ठीक है, करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड, कसवी के कॉलम में 6000 एक इफेक्ट क्रेडिट, दूसरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट साइड टू सैलरी कसवी 6000। इज इट क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में से देना पड़ेगा हमको, और वो कैसे कैलकुलेशन करना है वो सब हम एक्सप्लेनेशन में आ जाएंगे। तो हमने पहला एक्सप्लेनेशन देख लिया, दूसरा भी देख लिया, तीसरा जो एक्सप्लेनेशन है वो है हमारे डेवलपमेंट फंड के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेवलपमेंट फंड में हमको क्या बोला था कि हमको जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा बिफोर डेवलपमेंट फंड एंड कमीशन, यानी कमीशन और डेवलपमेंट फंड कैलकुलेट करने से पहले जो प्रॉफिट आएगा उस पे हमको कितना कैलकुलेट करना है 5%। अगर बट मैक्सिमम लिमिट उसका क्या है 6000। ठीक है, देखना आप अब ये प्रॉफिट कैसे आएगा बिफोर डेवलपमेंट फंड एंड कमीशन। बहुत सिंपल, अब से याद ही रखना, पूरे सेकेंड चैप्टर में और पूरे पार्ट 1 में ही आपको आने वाला है कि क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, बस यही सिंपल फॉर्मूला है। क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा बिफोर यहाँ पे डेवलपमेंट एंड कमीशन। ठीक है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आ जाते हैं हम। अगर कैलकुलेटर है आपके पास तो कैलकुलेटर से टोटल करोगे आप, तो क्रेडिट साइड का टोटल सब कुछ इंक्लूड करने के बाद दिख रहा है 172,480। ठीक है, अब डेबिट साइड जो जो लिखा हुआ है अभी तक 25,600 है, 2880 एंड 6000, इतना अगर हम माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर डेवलपमेंट फंड एंड कमीशन। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर डेवलपमेंट फंड एंड कमीशन सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया है। कितना आया? 1,38,000। उसका 5% तो हो रहा है 6,900, बट हमको तो वहां पे क्वेश्चन में बोला था कि मैक्सिमम रेस्ट्रिक्टेड टू 6,000, यानी 6,000 से ज्यादा नहीं दे सकते, तो कितना दे दो? 6,000 दे दो, राइट। सो डेवलपमेंट फंड की पहली इफेक्ट दे दो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड 6,000 रुपीज। इसकी सेकेंड इफेक्ट करंट अकाउंट में नहीं जाएगी, जैसे जनरल रिजर्व की सेकंड इफेक्ट करंट अकाउंट में नहीं जाती थी। मैंने कहाँ पे बताया था? जो भी आपके फंड है, जो भी रिजर्व है, वो सब कहाँ पे जाता है? बैलेंस्ड लायबिलिटी साइड। तो इसकी दूसरी इफेक्ट जब हम फाइनल अकाउंट पूरा बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि दूसरी इफेक्ट कहाँ पे जाएगी? बैलेंस्ड लायबिलिटी साइड। इज इट क्लियर? वैसे ही अब कैलकुलेट करना है कमीशन, और कमीशन कैसे था? आफ्टर था 10% यानी। ठीक है, तो देखो कमीशन का एक्सप्लेनेशन। चलो वापिस से आपको कैसे कैलकुलेशन करना है? क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, बट अब डेबिट साइड क्या आ जाना चाहिए? डेवलपमेंट फंड भी आ जाना चाहिए। तो एक शॉर्टकट, यस कोई लॉजिक अगर लगाएगा कि सर यानी बिफोर डेवलपमेंट फंड वो 1,32,000 था, अब 132 में से और 6,000 माइनस कर दे, सॉरी 138 था और 6,000 माइनस कर दो सर, तो कितना आएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर कमीशन? 1,32,000। ठीक है, किसी को ये मेथड नहीं पता चले तो वापिस से आप क्या करो? क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। ओके, चल तो कमीशन का जो बिफोर कमीशन हमारा जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना आया? 1,32,000। वर्ड है आफ्टर सच कमीशन, तो इंटू 10 डिवाइड बाय 100 प्लस आर होगा, दैट इज 110। तो कमीशन कितना आया? अमेरिका 12,000।
चलो दे दो कमीशन 12,000। पहली इफेक्ट पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड टू कमीशन मैरी 12,000। दूसरी इफेक्ट क्योंकि पार्टनर का है, पता चला ये पार्टनर का है तो ही वो कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में जाएगा। तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कमीशन इन द कॉलम ऑफ मैरी 12,000। इज इट क्लियर? अब जो हमारा मेन एडजस्टमेंट, लास्ट एडजस्टमेंट है जो हमने ऑलरेडी पहले देख लिया था, ठीक है। सबसे पहले एक काम करो, डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का। कैसे? वापस से क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, या फिर हम यहाँ पे बिफोर कमीशन 132 पे तो पहुंचे ही है और 12,000 माइनस कर दो तो आपको सीधा डिविजिबल प्रॉफिट कितना मिल गया? 1,20,000। बट ये 1,20,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो देखो। वापस से मैं क्वेश्चन पे ले जा रहा हूँ। पहला एडजस्टमेंट 3/5, ये 120 का पहले 3/5 निकालेंगे जिसको 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और रिमेनिंग यानी 2/5 वो निकालेंगे वो ओपनिंग कैपिटल के रेशियो में, यानी वो 2:2:1 में। एक्सप्लेनेशन पे आ जाओ तो ज़्यादा क्लियर होगा। देख लो टेबल। 120 कैसे आ गया वो तो पता चल गया। 132 माइनस 12 120, या फिर क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड करोगे तो भी 120 मिल जाएगा। अब ये 1,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 5 करोगे तो कितना आया पर्टिकुलर में? देखो 72,000। ये 72,000 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो तीनों में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 36,000, 24,000 एंड 12,000, ठीक है। एंड रिमेनिंग यानी कितना? 2/5। इसको दो तरीके से ढूंढ सकते हो आप कि 120 में से 72 माइनस कर दो, बाकी का जो बचा वो रिमेनिंग हो गया 42,000, या फिर 120 इंटू 2 डिवाइड बाय 5 करो तो भी 48,000 आएगा। और ये 48,000 है जो कैपिटल के रेशियो में, और कैपिटल का रेशियो क्या है? 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। करो डिस्ट्रीब्यूट। 19,200, 19,200, 9,600, टोटल 48,000। सो टोटल प्रॉफिट ऑफ, अब तीनों का क्लब कर दो तो श्रुति का 55,200, कस्वी का 43,200 एंड मैरी का 21,600। तो हो गया टोटल 120। बस डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस तरीके से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। देख लो श्रुति, कस्वी एंड मैरी का टोटल हो गया 120। ये जो प्रॉफिट है उसको हम कहाँ पे ले जाएंगे? देखो ऊपर लिखा ही है करंट अकाउंट में, ठीक है। तो देखो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन, डिविजिबल प्रॉफिट 55,200, 43,200, 21,600। ओके क्लियर है। पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्लोज किया, अब दूसरा क्या क्लोज करेंगे? हाँ, बीच में एक छोटा सा अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करो, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना बहुत ही सिंपल है। क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, यहाँ पे डेबिट साइड कुछ नहीं है तो क्रेडिट साइड का टोटल 1 लाख, वही हो गया आपका बैलेंस कैरी डाउन श्रुति का। कस्वी का 1 लाख, वो भी बैलेंस कैरी डाउन हो गया डेबिट में, देखो 1 लाख। और मैरी का टोटल 74,000, वो भी हो गया बैलेंस कैरी डाउन। सिंपल है। अब ऐसे ही करंट अकाउंट को क्लोज करो। श्रुति का क्रेडिट साइड का टोटल 91,120, उसमें से डेबिट साइड माइनस करोगे 18,360 तो आएगा बैलेंस कैरी डाउन 72,760। कस्वी का देखो क्रेडिट साइड का टोटल है 59,200, माइनस डेबिट साइड का देखोगे तो 18,000 माइनस 12,000 माइनस 480 एंड माइनस 1440 तो कितना आया? 27,280 बैलेंस कैरी डाउन। और मैरी का टोटल करेंगे 52,160 क्रेडिट साइड का, उसमें से माइनस 20,000 माइनस 1,200 तो बचेगा बैलेंस कैरी डाउन 30,960। ठीक है, क्लियर है। फिर भी कोई कैलकुलेशन में डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो। फिर से मैं एक चीज़ रिपीट करूँगा, देखने से ये क्लियर नहीं होगा। अकाउंट है, आपको ही ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो ही आप अच्छी तरीके से इसको कर पाओगे। तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट वीडियो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।
और फिर से रिमाइंड कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अभी भी बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डाउनलोड अवर एप्लीकेशन. थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ.